بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جان ہے عشق مصطفیٰ. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. خاک ہو کر عشق میں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے. ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے. کمی ہو عشق مصطفیٰ میں خدا نہ کرے. کمی ہو عشق مصطفیٰ میں خدا نہ کرے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ جل وعلا کا شکر ہے, اس کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم پہ کرم فرمایا, ہم پہ فضل فرمایا. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے قرآن کی دولت, قرآن کا نور ہمارے دلوں میں روشن فرمایا اور اپنے حضور کھڑے ہو کر ہمیں پڑھنے کا بھی شرف عطا فرمایا. بالخصوص حافظ ویسے صاحب باغین پہ مزید یقیناً یہ اللہ کی مہربانی ہے, لیکن اس کے محبوب کے صدقے سے ہے, محبوب کے کرم سے ہے. کہاں ہم کمینے, کہاں قرآن, کہاں محبت مصطفیٰ. یقیناً اس کی مہربانی ہے. ساتھ
علی خاوت نقش بندی دامت اللہ پاک کروڑہ رحمتیں ان کے مرکز نازل فرمائے. یقین نازل ہو بھی رہی ہیں, یقیناً بیٹا ان کا پڑھ رہا ہے اور ہم بھی پڑھ رہی ہیں. ان کے شاگرد بھی یہاں موجود ہیں, ان کی نمازیان بھی مقتدیان بھی یہاں موجود ہیں. یقیناً ان کی قبر روشن ہے. اللہ اور روشن فرمائے اور روشنی عطا فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں آپ غور کریں, اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ آج کا میرا موضوع ہے جشن نزول قرآن اور جشن صاحب نزول قرآن. شاید آپ نے پہلی دفعہ یہ ٹائٹل سنا ہو, مجھے نہیں یاد کہ آج سے پہلے کسی نے یہ موضوع رکھا ہو. یہی موضوع ہوتا ہے جشن نزول قرآن, لیکن میں نے اس کا موضوع رکھا جشن نزول قرآن, جشن صاحب نزول قرآن. آج تو بڑی جگہ پہ جشن نزول قرآن ہو رہی ہوں گے, لیکن جشن صاحب نزول قرآن کسی کسی جگہ ہو رہا ہوگا. کسی جگہ یہ جشن نزول صاحب نزول قرآن ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا. لیلہ مبارکہ یعنی دفعتاً واحدتاً اللہ نے پہلے آسمان دنیا میں سارا قرآن نازل فرمایا. پھر اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امین کے ذریعے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا درجہ بدرجہ نازل فرمایا اور نازل فرماتا رہا. جب شب قدر کی رات آئی تو اللہ پاک نے سارا ہی قرآن پاک اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا. یعنی آج بھی جو اگر یہی رات شب قدر ہے تو تکمیل وحی خدا اس رات میں ہوئی, ابتدا نہیں. جب میں آپ کو نہ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں, اور اب ایسے ہی محبت والے ہیں, پیار والے ہیں, کیونکہ پہلے محبت مصطفیٰ ہے, محبت خدا ہے, پھر بھی کوئی اور بات ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو قرآن کی ابتدا پہلے آسمان پہ ہے دفعتاً واحدتاً, پھر وہاں سے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر درجہ بدرجہ نازل ہوتا رہا. مصالحت حکمتیں تھیں, اور شب قدر کی رات کو یہ قرآن کی تکمیل ہوئی. یعنی آپ اس میں غور کریں, سارا قرآن شب قدر کو نازل نہیں ہوا. کتنا کو ہوگا, کتنا کو نازل ہوا, اور یہ ساری 1000 مہینے کی رات سے افضل ہو گئی. 1000 مہینے کی, تو کیا پورا قرآن نازل ہوا تھا؟ غور کریں کبھی, شاید پہلے غور نہ کیا ہو, لیکن اب غور کریں کہ سارا قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل نہیں ہوا. قرآن تو 23 سال اتنا عرصہ ہے کہ قرآن نازل ہوتا رہا. تھوڑی سی وہاں اتنے عرصے قرآن نازل ہوتا رہا, لیکن جب تکمیل ہوئی قرآن کی تو وہ رات تھی شب قدر. تو شب قدر کی رات اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, ذرا توجہ کریں کہ پورا قرآن اس رات کو نازل نہیں ہوا, اور کچھ حصہ قرآن کا لیلۃ القدر کو نازل ہوا, اور پھر کوئی لیلۃ القدر پہ نازل نہیں ہوا, قدر کی رات پہ نازل نہیں ہوا. قدر کی رات کو نسبت ہوئی ہے. قدر کی رات کو نسبت ہوئی ہے صرف قرآن سے, اور قرآن کے کچھ حصے سے قدر کی رات کو نسبت ہوئی. اس نسبت سے قدر کی رات 1000 مہینے سے افضل ہو گئی. بتاؤ, جس کے سینہ اقدس پر 6,66,000 6 لاکھ سے زیادہ جو آیات کریمہ نازل ہوتی رہی, اس ذات والا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تم نے کیا شان نزول قرآن کرنا ہے؟ تمہارے منہ ہیں شان نزول قرآن بیان کرنے والے؟ آؤ ہمارے پاس, تمہیں بتائیں
ایک قرآن کا کچھ حصہ ایک رات کو تکمیل ہو اور وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے جن پہ ہر گھڑی قرآن نازل ہو. چلے تو قرآن نازل, اٹھے تو قرآن نازل, کنگھی کرے تو قرآن نازل, زلفیں سوارے تو قرآن نازل. انبیاء جائیں خطاب لینے کے لیے, وہ طالب ہیں قرآن کے, وہ طالب ہیں اللہ کی کتاب کے, وہ طور پہ جا رہی ہیں اور قرآن دینے جا رہی ہیں کہ مالک سے کلام ہو جائے, مالک کلام دے جائے. کیا شان ہے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. آقا جا نہیں رہے, حضور جدھر جاتے ہیں قرآن ادھر ہی جاتا ہے. یہ کیا تم سمجھو کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ یہ نہیں. اللہ کے محبوب فرماتا ہے سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ اولاد کو, سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ, میری آن کی محبت سکھاؤ قرآن کا, پھر اس کے بعد قرآن کا درجہ ہے. یعنی قرآن کی محبت تب ملے گی, قرآن کا نور تب ملے گا جب پہلے محبت مصطفیٰ کا نور ملے گا, محبت اہل بیت کا نور ملے گا. اور تجھ نزول قرآن کرتا ہے اور میلاد جشن میلاد مصطفیٰ پہ تجھے موت پڑ جاتی ہے, تجھے پتہ نہیں کون سا بم لگتا ہے, تو مر جاتا ہے, تجھے مرچیں لگتی ہیں. آج جشن نزول قرآن پہ مرچیں کیوں ہیں؟ آج لائٹیں کیوں ہیں؟ کیا اس رات سارا قرآن نازل ہوا تھا؟ ایک حصہ نازل ہوا تھا؟ کیا رات میں نازل ہوا تھا؟ یہ رات میں نازل نہیں ہوا, رات کو تو نسبت ہوئی ہے, نازل تو آمینہ کے لال کے سینے پہ ہوا ہے. تو جن کے سینے میں نازل ہو, رات اعلیٰ ہو جائے, اتنی اعلیٰ ہو جائے, تو جو سینہ قبول ہی نہ کرتا تو یہ رات کو عظمت کہاں سے ملتی, اس رات کو مقام کا مرتبہ. یہ تو احسان ہے آمینہ کے لال کے سینے کا کہ اس کو قبول کیا تو لیلہ قدر افضل و اعلیٰ ہو گئی. کیا پتا حضور کی شان کیا ہے, تمہیں کیا پتا اگر اس کے پالتو تمہیں کیا پتا, ریال کھانے والا تمہیں کیا پتا, جو ٹکر پہ پلتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے انہیں کچھ پتا ہے شان مصطفیٰ کیا ہے. قرآن تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہے, صبح قرآن رات قرآن, قرآن تمہیں کیا دے گا؟ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہی نہیں اسے قرآن کیا دے گا؟ جب حضور ہے تو جب موت بڑھ جائے اور جن کے سر پہ قرآن نازل ہو اور ایک حصہ نازل ہو, رات اعلیٰ ہو جائے, تو وہ ذات جس دن آئی ہے اور جس رات آئی ہے اس رات جیسی رات بھی بتا کے بتاؤ, وہ رات اس جیسی کو رات بھی ہے, اس جیسی کو گھڑی بھی ہے. اس لیے میرے امام بولے ان کو کیا پتا شان مصطفیٰ کیا ہے. یہ جشن نزول قرآن کرنے والے اس قابل نہیں تم, ایک حصہ نازل ہو, وہ نازل بھی حضور پہ ہو, نسبت صرف ہو تو وہ اعلیٰ ہو جائے. میں بتاؤں میرے امام کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جس سہانی گھڑی, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس فروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور تمہیں کیا پتا ہے کہ میرے آقا جس گھڑی آئے اس گھڑی کو اتنا فیض ملا, اتنا فیض ملا, قیامت تک جو گھڑی پالے گا وہ سینہ روشن کر دے گی. ابھی تو ایک گھڑی کی نسبت ہوئی ہے تو گھڑی اتنی اعلیٰ ہے, وجود مصطفیٰ کا عالم کیا ہے. آج پتہ نہیں کیا تم جشن نزول قرآن, جشن نزول قرآن, جشن نزول قرآن بھی ہم کرتے ہیں اور جشن صاحب نزول قرآن بھی ہم بتاتے ہیں اور ہم کرتے ہیں. اب سنو مدارج النبوہ اور یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہیں ہر مرتبہ فکر کا کہتا ہے یہ محدث علی الاطلاق ہے, محدث علی الاطلاق, کوئی بھی نہیں کہتا یہ محدث نہیں. اور بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا فیض بانٹنے والی ہستی, اور یہ وہ ہستی جو صاحب حضوری اور قادری سلسلے کے بہت بڑے مد قلندر اور بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جس رات آمینہ کے لال حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ منور, مادہ پاک اور نور پاک, جس رات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں جلوہ گر ہوا, کہ وہ رات اتنی اعلیٰ رات تھی, وہ رات اتنی اعلیٰ تھی, اتنی اعلیٰ تھی, اتنی کرم والی تھی, اسی سعادت والی تھی کہ اللہ پاک کے محبوب خود فرماتے ہیں, حدیث شاہد ہے اس پہ, کہ اتنی اعلیٰ تھی کہ نور مصطفیٰ آیا, اپنے تو اپنے ہیں,
मोमिन तो मोमिन है, अल्लाह ने हर जहां को रहमत से भर दिया। सारे जहां पे रहमतें, सारे जहां पे बरकतें, सारे जहां को सजा दिया। आप कहते हैं यानी फरिश्तों की दुनिया में ये आवाज दी गई कि सारे जहां को अनवार अब्द से मुनव्वर कर दिया जाए। सारे जहां को भी नूर मुस्तफ़ा जलवा कर हुआ है। अभी वजूद मुस्तफ़ा नहीं आया, अभी नूर मुस्तफ़ा सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अतहर में आया। फरिश्तों को हुक्म हो गया, अनवार अक़दस से इस दुनिया को आवाज़ दी गई। फरिश्तों की दुनिया में ये आवाज़ दी गई कि सारे जहां को अनवार अक़दस से मुनव्वर कर दो। सारे जहां को जरा गौर करो, मैं भी आपको मदीना बाग लेके जाने वाला हूँ। अभी भी आप जा रही हैं, लेकिन बात बड़ी गहरी कर रही हैं और हदीस है, कोई अपनी बात नहीं। और बयान करने वाले शेख अब्दुल हक हैं मुहद्दिस देहलवी के हुजूर क्या फरमाते हैं। फिर ये ऐलान, इस ऐलान से ज़मीन और आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी के मारे झूम उठते हैं। ज़मीन के भी फरिश्ते जश्न मना रहे, आसमान के फरिश्ते भी जश्न मना रहे। देखो आज हम जश्न मना रहे हैं, जश्न नज़ूल कुरान भी है, जश्न साहिब नज़ूल कुरान भी है। दोनों बात की जश्न ही हमने करना है। अब ये जश्न देखो, ऐलान कर दिया गया, ज़मीन पे फरिश्ते जश्न मना रहे हैं और फिर आसमान के फरिश्ते भी वो भी जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं। वो फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों को भी खोल दिया गया। हुक्म हुआ कि जन्नत के दरवाज़ों को खोल दो। फिर दो से आला के दरवाजे खोल दिए जाएं, सबसे आला जन्नत, उसके भी दरवाजे खोल दिए जाएं। सारे जहानों को खुशबू से महका दी, सारा जहां खुशबुओं से महका दिया गया। और ज़मीन और आसमान के हर तबका, हर गोशे में ये बशारत सुनाई दी गई और ये खुशखबरी दी गई कि आज की रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अतहर में करार पा गया है। करार पा गया। जब शेख ये लिखते हैं हदीस तो कहते हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल। और इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? पीराने पीर गौस आज़म दस्तगीर हज़रत शेखुल जिन्न वल इंस हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी के इमाम का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। और वो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मेरे नजदीक लैलतुल क़द्र से अफजल जुमेरात की रात है। लैलतुल क़द्र से अफजल जुमेरात की रात है। क्यों? शेख लिखते हैं, शेख तेलवी कहते हैं कि इमाम ने इतनी बड़ी बात क्यों की कि लैलतुल क़द्र से अभी हुजूर के लिबादा बशरियत की बात नहीं हो रही, अभी हुजूर के नूर की बात हो रही है जो मुंतकिल हुआ। तो कहते हैं वो जुमेरात को मुंतकिल हुआ। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मेरे नज़दीक वो रात जुमेरात की रात लैलतुल क़द्र से अफजल है। क्यों? शेख फिर आगे वजाहत करते हैं, कहा ये जो इनाम इस रात को नाज़िल हुई, जो सादे इस रात को नाज़िल हुई, जो बरकतें इस रात को नाज़िल हुई, और सिर्फ ये नहीं अपनों को ही मिली, नहीं बेगानों को भी मिली, और सिर्फ ये नहीं कि जिन्नों को मिली, फरिश्तों को भी मिली, इंसानों को भी मिली, जमादात को भी मिली, हैवानात को भी मिली, यानी हर मखलूक जहाँ की, हर मखलूक पे करम हुआ, हर मखलूक को नवाजा गया, हर मखलूक पे मेहरबानी हुई। कहा ये जो सादतें, ये जो करम, ये जो रहमतें उस रात नाज़िल हुई, तो क़यामत तो आ सकती है फिर नाज़िल नहीं होगी। क़यामत तो आ सकती है फिर नाज़िल। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे जवाब तो दो, ये कौन से मिंबर पे बैठ के और बातें करने वाले और ये बकवास करने वाले कि उनके वालिदैन का ईमान नहीं था, और जालिमों हुजूर के वालिदैन का ईमान नहीं था। नूरे मुस्तफ़ा जब उनके बतन अतर में आए, सारा जहां रोशन हो जाए और इतनी बरकतें आए, दाएं बाएं रोशनी हो जाए, फरिश्ते मुनव्वर हो जाएं, जन्नतों के दरवाजे खुल जाएं, बशारतें आम हो जाएं, फरिश्ते झूम उठें, हर तरफ बहार आ जाए, खुशबू महका दी जाए, जमाना मुअत्तर कर दिया जाए, और शेख फरमाए कि क़यामत तक वो रहमतें नाज़िल नहीं होगी। इसलिए 1000 बार लैलतुल क़द्र आए, करोड़ बार लैलतुल क़द्र आए, क़यामत तक भी लैलतुल क़द्र आए। जो रहमतें उस वक्त नाज़िल हुई थी, 1000 बार करोड़ बार भी लैलतुल क़द्र आ जाए, वो रहमतें नहीं आ सकती। तो जब रहमत वजह बनी रसूलुल्लाह के नूर की, तो जिस माँ के बतन अतर में वो नूर आया है, बताओ उस माँ को कितनी रहमतें मिली होंगी। जालिमा तुमने क्या बयान करना शान मुस्तफ़ा, तुमने क्या बयान करना शान
जश्न नज़ूल कुरान तुमने क्या अता करना है? जो बेड के ऊपर गए थे वो ईमान नहीं लाए, बेहया, उनकी वजह से तो नूर आया है, सारा ज़माना जगमगा गया है। लैलतुल क़द्र एक रात निस्बत हुई तो वो उम्मतियों के लिए हुई, उम्मतियों के लिए 1000 महीने से बेहतर है। ये ईसाइयों के लिए नहीं, ये काफिरों के लिए नहीं, ये यहूदियों के लिए नहीं, ये जमादात के लिए नहीं, ये नबादात के लिए नहीं, ये हवानात के लिए नहीं, हशरातुल अर्द के लिए नहीं, लेकिन जब नूर मुस्तफ़ा आया, खास के लिए नहीं आया, सारे जहां के लिए आया, सारे जहां को मुनव्वर किया है। और जिस माँ के पेट में आया, दाएं बाएं रोशन हो जाएं, और जिसमें नूर आया हो वो बेनूर रह जाएं। क्या तुम्हारा मजहब है? तुम्हारी मजहब पे लानत में यहाँ से मजहब है। ये हमारा मजहब कि नूर मुस्तफा आए, बाहर क्या रोशनी है, अंदर पूछो सैयदा तैयबा ताहरा से कि अंदर कितना मुनव्वर हुआ है, कितना रोशन हुआ है। फिर शेख फरमाते हैं, फिर शेख भी थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं कि जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक अंदाज उठाया, एक मोहब्बत का इजहार किया, वो छोटी हस्ती तो नहीं इमाम अहमद बिन हम्बल, अभी आपको बताऊंगा, आप वजन में आ जाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल आला हज़रत लिखते हैं, इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं, ये उन हस्तियों का नाम ले रहा हूँ जिन पे आंखें बंद हैं। इमाम ग़ज़ाली, फिर इमाम अहले सुन्नत अश्शाम रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमान लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल वो हस्ती थी कि जिनको ख्वाब में रब का दीदार होता था, जिनको ख्वाब में रब का दीदार होता था। तो उन्होंने अर्ज़ की, मालिक तेरे करीब करने वाली चीज़ कौन सी है? तेरे यानी वो कौन सी चीज़ है जो तेरे ज़्यादा करीब करती है, क्योंकि उससे कुर्ब से बढ़ के कौन सी शय है अल्लाह का कुर्ब मिले। तो पूछा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया तिलावत कलाम, तिलावत कुरान, कुरान की तिलावत ये सबसे ज्यादा मेरे करीब करने वाली है। पूछा, मालिक बिफहमिन और बिगैर फहमिन, क्या इमाम अहमद बिन हम्बल की पहुंच थी और हमारे लिए कितने रास्ते खोल दिए। पूछा, मालिक समझ कर तिलावत करे तो कुर्ब मिलेगा या बगैर समझ के, तर्जुमा आता नहीं उसको, मफहूम आता नहीं, लेकिन कुरान पढ़ना आता है, तो क्या वो भी कुरान पढ़े तो उसे भी कुर्ब मिल जाएगा और जो समझ के पढ़े उसे भी मिल जाएगा। कहाँ अहमद बिन हम्बल हमारे कुरान की कोई तिलावत करे, चाहे समझ आए या ना आए, हम उसको अपना कुर्ब अता फरमा देंगे। ये इमाम अहमद बिन हम्बल हैं जिन्हें इमाम ग़ज़ाली भी कोट करती हैं, जिन्हें आला हज़रत भी कोट करती हैं। तो उन्होंने कहा ये रात, जिस रात नूर मुस्तफ़ा आया वो लैलतुल क़द्र से अफज़ल है। तो शेख क्या कहते हैं, शेख अब्दुल मुहसिन देहलवी रहमहुल्लाह ताला, आप फरमाते हैं, सुनो, नूर आए तो सारे जहानों से आगे, हर रात से बेहतर रात, लैलतुल क़द्र से भी बेहतर रात। तो कहा नूर आए तो रात इतनी अफज़ल आला, तो जिस दिन जिस रात वजूद मुस्तफ़ा आए, सुभान अल्लाह, थोड़ी गिरी आप नहीं समझे। शेख अब्दुल मुहसिन देहलवी आप फरमाते हैं, जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये कहा, फिर आपने कहा इस एतबार से मिलाद शरीफ की रात, अब मिलाद शरीफ की रात को अगर शब कदर से अफजल करार दिया जाए तो यकीनन ये रात उसकी आहद है, का शक ही नहीं। शेख कहते हैं शक ही नहीं कि जब नूर मुस्तफ़ा आए वो लैलतुल क़द्र से अफजल हो, तो जिस रात वजूद मुस्तफ़ा आए, जिस रात लिबाद बशरियत में रसूलुल्लाह आए, मैं शक ही नहीं कि वो लैलतुल मिलाद की रात लैलतुल क़द्र से अफजल है। वो कहते हैं ये मेरी बात ही नहीं कि सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, फरमाया अहले इल्म ने इसकी तौफ़ीक़ की है, इल्म वालों ने कहा ये बात सही है। आप समझ आ रही है, कुरान को शान जश्न नज़ूल कुरान तुम मना रहे हो, और आप वो लोग जो हकदार हो, जिन पे रब का करम है, रब के मुस्तफ़ा का करम है कि आपके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है, आपके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा का चराग रोशन है कि आप समझ रहे हैं ये लैलतुल क़द्र भी मिली है तो सीना मुस्तफ़ा की वजह से मिली है। आप जरा आगे चलें, फिर आपको बहुत लुत्फ आएगा, आप देखेंगे, फिर आपको पता चले कुरान की शान क्या है, कुरान की अज़मत क्या है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कहा अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल फरमाते तो मेरे खौफ की वजह से, मेरी खशियत की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाता।
टुकड़े टुकड़े वतिलकल अमसाल नदरिबुहा, हमारे ये मसाले हैं, हम बयान करते हैं। हम, इसका मतलब है मसाल भी बयान करना सुन्नत खुदा है और वाक़या बयान करना भी सुन्नत खुदा है, सुन्नत मुस्तफा है। लेकिन मैं कहा करता हूँ वाक़े चस्कों के लिए ना सुना करो और ना गवैयों से सुना करो, ना पैसों के बटोरने वालों से सुना करो। वाक़या सुना है तो किसी आमिना के लाल के गुलाम से सुना करो। वाक़या नामा खातून हुसैन नहीं सुनाते थे और वाक़या सुना के बंदे को शेर बना देते थे। वाक़या को सुनाने वो पैसों के लिए नहीं सुनाते थे, वो आमिना के लाल के लिए सुनाते थे। इसीलिए जिंदाबाद 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 तवज्जो फरमाएं, इसकी तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। रफ मदा हम मसाले बयान करती हैं तो मौलाना रूम की मसलवी तुझे तकलीफ देती है, हमारे बुजुर्गों की मिसालें मिर्जा जनवी जैसे खबीस कुत्तों तुम्हें तकलीफ देती हैं। हमारे बुजुर्ग वाक़या बयान करें तुझे आग लगती है, दादा साहब करें तो तुझे आग लगती है, और ख्वाजा साहब करें तुझे आग लगती है, मौलाना रूम करें तो तुझे आग लगती है। तुझे इसलिए आग लगती है कि तेरे अंदर है ही आग, क्योंकि बना है जो शैतान से, तो फिर आग तेरे अंदर भी शैतानियत है, इसलिए तू बकवास करता है। अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी ईमान होता कभी बकवास न करता, क्योंकि तूने तो ना कुरान को छोड़ा, ना कुरान के जिस पे कुरान नाज़िल हुआ मुस्तफा जाने रहमत को छोड़ा। रब फरमाता है हम मच्छर की भी मिसाल देने में हया नहीं करते, हम मिसाल बयान करने में मच्छर की भी मिसाल देते हैं। हम खालिक हैं, अल्लाह समद हैं, अल्लाह बेनियाज है, फिर भी कहता है मिसाल बयान करने को मच्छर हो इससे भी बढ़कर हो, हम वो भी बयान करते हैं, वो भी बयान करेंगे। मसाले रब ने दी, वो किस्से रब ने बयान फरमाए, किस्से रसूलुल्लाह ने बयान फरमाए। एक किस्सा नहीं, कितने ही किस्से हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, फिर सहाबा ने बयान फरमाए। कहीं इशारे हैं, कहीं इशारे हैं, कहीं कुछ वजाहत है, कहीं तफसील है। क्या आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में मौजूद नहीं? क्या उनके बेटों का कुरान में किस्सा मौजूद नहीं? अलग बात है कि हर बात की तफसील नहीं की, मुस्तफा जाने रहमत में भी छोड़ी है। मैं वो अब भी बताते जाएं, क्या ये वाक़या मौजूद नहीं? मूसा कलीमुल्लाह का वाक़या मौजूद नहीं? हज़रत हूद का मौजूद नहीं? हज़रत आद का मौजूद नहीं? ये कौम आद, हज़रत समूद, जब इनके सारे अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद नहीं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद नहीं? कितने नबियों के नाम ने, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, क्या इनके जिक्र, इनकी कुछ कुछ वाक़यात कोई इशारतन अल्लाह ने बयान नहीं फरमाए? कितने हैं, बल्कि सबसे किस्सा जो बेहतर है, रफ़्मद अहसनुल क़िसस, सबसे बेहतर कहानी, सबसे बेहतर किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। किसका है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये धोखा देते हैं आप लोगों को, कहते हैं जी नहीं ये जो किस्से सुनाते हैं, ऐसा मतलब है कि रब पे भी बात करोगे। रब तो कहता है अहसनुल क़िसस, सबसे बेहतर किस्सा, सबसे यूं कह लो सबसे बेहतर कहानी। ये हमारी बनाई हुई नहीं, रब की बताई हुई, रब की बताई हुई का सबसे बेहतर किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। और पढ़ो कुरान में कितनी वजाहत है इस किस्से की। अब वक्त नहीं है कि उसकी तरफ जाऊं, लेकिन इशारा करते जा रहा हूँ। रब किस्से भी बयान फरमाता है, रब मसाले भी देता है। मुस्तफा जाने रहमत किस्से भी बयान फरमाते हैं और फरमाते रहे, और आप मसाले भी देते रहे। इस पे अगर हम शुरू हों तो हो सकता है रात खत्म हो जाए, हम इधर ही रह जाएं, अपने जो मौजू है उससे हट जाएं। लेकिन मैं इशारा करते जा रहा हूँ क्योंकि आज बड़े खतरनाक लोग आ गए हैं। वो इस तरीके से लोगों को दीन से हटाते हैं, कहते हैं ये किस्से बयान करते हैं। पूछो कुरान है, किस्सा नहीं है? तो जिसने इनकार किया काफिर नहीं होगा? काफिर हो जाएगा। जिसने हदीस मुस्तफा का इनकार किया वो भी क्या हो जाएगा? काफिर होगा। क्या आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हुजूर ने बयान नहीं फरमाया कि मूसा आदम अलैहिस्सलाम का आपस में मुबाहसा हो गया? क्या हुजूर ने बयान नहीं फरमाया? इब्राहिम और नमरूद का जो मुकाबला है, जो मुजादला है, रब ने बयान नहीं फरमाया? किस तरह उनका मुजादला हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ? मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन से जो मामला हुआ, रब ने बयान नहीं फरमाया? डंडा मार के वो पत्थर से चश्मे जारी कर दिए, डंडा मार के दरिया में रास्ते बना दिए, कि अल्लाह ने वाक़े बयान नहीं फरमाए? तो क्या तुम लोग क्यों इन लोगों के पीछे लगे हो? क्यों अपना ईमान खराब करते हो? बैठो उलमाए किराम के बाद तुम्हें रोशनी दें, ऐसी रोशनी मिलेगी, बैठे यहाँ होगे आमना के लाल के कदमों में, उधर पहुंच जाओगे। तो मैं बात बताना चाहता हूँ कि आपको धोखे में डाल के आपको कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। रब फरमाता है हमने ये जो कहा कि पहाड़ पे नाज़िल फरमाते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, क्यों? हमने ये मिसाल बयान की। हम ये मसाले बयान करते हैं। क्यों करते हैं मसाले बयान करते हैं?
फरमाया लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि तुम कुरान से क्या करो। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो रखना, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अल्लाह किस में गौर व फिक्र करवाना चाहता है? किस में? आप बोलो तो सही ना, किस में? पहाड़ में। पहाड़ की मिसाल दी ना, और देकर फरमाया ये इसलिए दी है कि गौर कर पहाड़ के अंदर। किसके अंदर? कि पहाड़ में कितनी ताकत है, पर पहाड़ में कुव्वत बर्दाश्त कितनी है। और अगर हमारा कुरान नाजिल हो उस पहाड़ पे, तो पहाड़ क्या हो जाए? रेजा रेजा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। इससे पता चल रहा है अगर अल्लाह के यहाँ इससे भी कोई मजबूत चीज होती, इससे भी कुव्वत बर्दाश्त रखने वाली चीज होती, इससे भी किसी चीज का कलेजा बड़ा होता, तो अल्लाह उसका जिक्र करता, अल्लाह पाक उसका जिक्र करता। लेकिन अल्लाह ने पहाड़ का जिक्र करके बता दिया मेरे नजदीक मेरे महबूब तो महबूब है ना, ये पहाड़ के अंदर इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, लेकिन मेरा जलवा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा जलवा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मिसाल देकर अल्लाह ने अपने महबूब की शान हाईलाइट की है, अपने महबूब की शान ना मिसाल देता तो कहने वाले कहते हुजूर पे कौन सा मसला था, कुरान आ गया हुजूर ने ले लिया, हमें भी हम पे भी आ जाता, हमें भी कुछ ना होता। ऐसे बदतमीज बेहया पैदा हो चुके हैं और ऐसी बोलने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने आज की बोलती बंद कर दी और कुरान की मिसाल दे दी। कहा पहाड़ पे नाज़िल फरमाते ताकि पता चल जाए कि ये हर एक को मिलने वाली दौलत नहीं है, 1,24,000 पैगंबरों को भी ये दौलत मिलने वाली नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह जैसे तूर पहाड़ पे एक सिफत के करोड़वें हिस्से वो जो नाज़िल हुआ पहाड़ के ऊपर, उसे डायरेक्ट नहीं देखा, इनडायरेक्ट देखा, पहाड़ सुरमा सुरमा हो गया। एक सिफत का करोड़ जलवे का करोड़वां हिस्सा वो पहाड़ पे आए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए और मूसा अलैहिस्सलाम इनडायरेक्ट देखें, बिल वास्ता देखें और 2 हफ्ते तक दूसरी दुनिया में चले जाएं। खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े और 2 हफ्ते तक दूसरे मकाम पे चले जाएं, ना पहाड़ बर्दाश्त कर सके, वो एक जलवा के कितना हिस्सा बर्दाश्त न कर सके। कलीमुल्लाह पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर कौन सा सीना था, कौन सा दिल था कि जो पहाड़ से भी कवी हो, सारे नबियों के दिलों से भी कवी हो। तो फिर मानना पड़ेगा जैसा कल्ब मुस्तफा है कायनात में किसी का है ही नहीं। कल्ब तो कल्ब है, हुजूर के किसी हिस्से का कोई मुकाबिल है ही नहीं। अल्लाह ने हुजूर को हर एतबार से बेमिसो बेमिसाल बनाया है और दिल इतना आला है, दिल इतना आला है कि रब फरमाता पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन एक तजल्ली नहीं, एक तजल्ली नहीं, 6 लाख से ऊपर कितनी तजल्ली है। और पहली तजल्ली में जो हैबत थी, जो पहली निस्बत अल्लाह से हुई, रूहानी रब्त हुआ, रूहानी ताल्लुक हुआ, तो हुजूर इतने घबराए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी कहने लगे इस अंदाज से, यानी इतना जलाल था। अब इब्तिदा थी, पहली तजल्ली थी, वो इतनी हैबत वाली थी कि हुजूर ने कहा मुझे कंबल ओढ़ दो, मुझे कंबल ओढ़ दो। अंदाजा लगा सकते हो। बल्कि बात अब ऐसा भी आपने सुना होगा कि वही आई जानवर बैठ गया, इतना जलाल, इतना जवाब, पसीने आ गए, वही आई, वही किस हालत में आती, हुजूर की हालत क्या होती, जानवर भी डर जाते, जानवर नीचे बह जाते, इतना जलाल कि सहना मुश्किल होता। लेकिन ये तो आमिना के लाल का सीना था, ये रसूलुल्लाह का कल्ब अतहर था कि जिसने 6000 से ज्यादा आयात के जन्मों को अपने सीने पे बर्दाश्त किया, और जब उन्होंने बर्दाश्त किया तो आप गली मोहल्ले में हाफिज हाफिज बन गए, मुहद्दिस बन गए, फकीह बन गए, आलिम बन गए, वली बन गए, गौस बन गए, अब्दाल बन गए, कुतुब बन गए, गौसुल अगियास बन गए, सहाबी बन गए, मर्तबे पा गए, दराजात पा गए। मुझे इंसाफ से बताओ, अगर रसूलुल्लाह कबूल ना करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को लेते ना, अपने दिल पे बर्दाश्त ना करते, कोई आलिम नजर आता, ये मस्जिद नजर आती, मंदिर नजर आते, ईसाई गिरजे घर नजर आते, ये मस्जिदें हैं तो सीना मुस्तफा के सदक़े से हैं, ये बहारें हैं तो सीना मुस्तफा के सदक़े से, ये उलमा हैं तो सीना मुस्तफा के सदक़े से, ये फ़क़ीह हैं तो उलमा, ये जितने भी फ़क़ीह हैं, जितने भी मुहद्दिस हैं, जितने भी मुफस्सिर हैं, सीना मुस्तफा की वजह से हैं। ये गौस, ये खुतब, ये अबदान, ये जितने भी हैं सीना मुस्तफा की वजह से हैं। अगर हुजूर कुरान न लेते तो कौन आपसे कुरान बनता, कौन उसकी तालीम लेता, कौन बनता? तो क्यों नहीं फिर मानते कि जिसको भी जो मिला है आमिना के लाल से मिला है। अल्लाह
तो आगे जिंदा। अब वक्त के दामन में तो गुंजाइश नहीं कि मजीद इसको आगे लेके जाए, लेकिन आप तो मोहब्बत वाले हैं, जितनी गुफ्तगू होगी उतनी भी दिल में उतर जाए तो ये बख्शिश के लिए इतनी काफ़ी है, और जन्नत के लिए भी अगर दिल में उतर जाए कि जो कुछ भी है हुजूर के सदक़े से है, जो कुछ भी है, कुरान मिला तो हुजूर का सदका, रहमान मिला हुजूर का सदका, ईमान मिला हुजूर का सदका, जो कुछ भी मिला। इसलिए मेरे इमाम बोले, इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा फाज़ बरेलवी का नेमतें बांटता कि संत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता। इस तरह बयान करो ना तो लोगों को कुछ मिले। ये क्या हुआ, रुबाई पे रुबाई पढ़ते जाओ और वजन पे वजन आता जाए, जाओ लोगों को कुछ दोगे, हमने कोई तकरीर बनवानी है, वाह लेनी है, वाह नहीं लेनी। लोगों को कुरान का मफहूम बताओ, लोगों को हदीस का मफहूम बताओ, जो रसूलुल्लाह पैगाम देना चाहते हैं। ये क्या 6-6 आयतें 20-20 आयतें पढ़ दी, लोगों को तो मजा आएगा और मोहब्बत मिलेगी, उससे स्वाब मिलेगा, लेकिन उस आयत में मैसेज क्या था वो भी तो पूछाऊँ ना, मैसेज क्या है। मैं भी आयतें पढ़ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे कुरान हूँ, मैं कितनी आयतें शुरू करूँ हुजूर की शान में, करता जाऊँगा, लेकिन आप लुत्फ अंदोज होंगे, आपको प्यार भी आएगा, सवाब भी मिलेगा, लेकिन मैसेज कहाँ गया। मैसेज भी तो देना है, मैसेज ही देना। आज हम देखते हैं मुक़र्रिर हज़रात वो बयान पे बयान करती हैं, स्पीड पे स्पीड होती है, शेर पे शेर होती हैं, और शेर भी पढ़ो लेकिन शेर की रूह भी दो, शेर भी पढ़ो शेर की रूह भी दो, और बयान भी करो, आयतें 1000 पढ़ो लेकिन हर 1000 आयत का मफहूम बताओ, उन्हें बताओ ये आयत तुम्हें क्या देना चाहती है, इसमें मैसेज क्या है। फिर देखो बंदा यहाँ बैठा उस पे पहुँच जाता है। अब देखो इमाम अहले सुन्नत किस अंदाज से मैसेज देते हैं, कुरान का मैसेज है लेकिन है शेरी सूरत में। नेमतें बांटता कि सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। रहमत का कलमदान वो कौन है, अल्लाह। रहमत का कलमदान को पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन कलमदान हुजूर के हाथ में है। किसके हाथ में है, और हुजूर लिखे जा रहे हैं। साथ ही मुंशी जो लिखते हैं हमारी कहता वही, महबूब तुझी पे छोड़ा है, देता जा महबूब देता जा, हमारी है, इधर कोई इंतहा है, बेइंतहा है, तुझ पे छोड़ी है तू मेरा है, बस देता जा। फिर महबूब ने क्या कुछ नहीं दिया, महबूब ने कुरान दे दिया। क्या दे दिया, कुरान दे दिया, और फिर रहमान की मोहब्बत दे दी, रहमान की, और रहमान की पहचान भी हुजूर ने दी, इसने दी। इसलिए मुजद्दिद पाक बोले, मुजद्दिद अल-फसानी, उन्होंने कहा हमने रब को रब क्यों माना, कहा रब मोहम्मद अस्त, इसलिए कि मेरे आका का रब है, मेरे आका का रब है, इसलिए हमने रब माना है, इसलिए हमने रब माना है। अब देखो कुरान है, कुरान पढ़ते जाओ। ये जो ला उक़सिमु बिहादल बलद है, ये नात नहीं है, पूरा कुरान ही नात है, और इससे बड़ी कोई नात नहीं है, इससे बड़ी कोई नात, और इसका मुकाबिल भी कोई नहीं है, इसका मुकाबला भी कोई नहीं है। आला से क्या कहते हैं, जब रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दाह मुस्तफ़ा, क्या शेरा रज़ा है, रज़ा साहिब कुरान, इस शेर तो यही है, जब खुदा खुद है मद्दाह मुस्तफ़ा, जब खुदा खुद है मद्दाह मुस्तफ़ा, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत मुस्तफ़ा। कहा ये पंजाबी थे, ये फलां शेर, ये शेर तो बाद में है, हदीस मुस्तफ़ा का भी वो दर्जा नहीं है जो कलाम खुदा है। और कहा रज़ा तूने बड़ी नातें लिखी, हुजूर की बड़ी शानें लिखी, और लिखी भी कुरान और हदीस के मुताबिक लिखी, और उसकी तर्जुमानी की, लेकिन फिर भी रज़ा तू क्या तारीफ कर सकता है जिनकी तारीफ करने वाला खुद खालिक कुरान है। जो खालिक है, खुद खालिक है, वो है, खालिक कुरान नहीं, जो खुद खालिक है आपका, वो खालिक आपकी तारीफ कर रहा है। तो वो किस तरह करता है, वो तीन, वो जैतून, वो तूर सीनीन, ये किसकी तारीफें हैं, किसकी कसमें मालिक उठाता है, किसकी वजह से कसमें हैं, रसूलुल्लाह की वजह से कसमें हैं। ला उक़सिमु बिहादल बलद वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद, ये कुरान अल्लाह पाक क्या फरमाता है, महबूब मैं इस मक्का की कसम नहीं उठाता, शहर मक्का की कसम नहीं उठाता। हालांकि क्या मक्का में मुज़दलिफ़ा नहीं है, मुज़दलिफ़ा नहीं, मक्का में मकाम इब्राहीम नहीं, मक्का में काबतुल्लाह नहीं, मक्का में मुल्तज़म नहीं, क्या मक्का में और कोई शान वाली चीज़ नहीं, क्या मक्का में और कोई अज़मत वाली शय नहीं। लेकिन रब फरमाता मैं नहीं कसम उठाता मक्का की, मैं मक्का की कसम नहीं याद फरमाता। क्यों याद फरमाता हूँ, वअन्त हिल्लुम बिहादल बलद, हाँ मैं कसम उठाता हूँ
इसलिए उठाता हूँ महबूब, मैं जिसे भी देखता हूँ तुझी से देखता हूँ। नहीं समझे आप? मैं जिसे भी देखता हूँ तुझी से देखता हूँ। ये जो काबा है ना, ये भी तेरी वजह से है। ये काबा भी तेरी वजह से। आज काबे को मुंह करते हो, तुम तो इस लायक ही नहीं कि तुम काबे को तरफ मुंह करो, क्योंकि काबा भी हुजूर के इख्तियार की वजह से हुआ, काबा भी रज़ाए मुस्तफ़ा से हुआ। फलसौफ युअतिका रब्बुका फतरदा तो ये है, लेकिन क़िबलतन तरदा भी है। मालिक फरमाता महबूब आप बार बार आसमान की तरफ देखते हैं और आप देखते हैं और मैं आपको देखता हूँ। बताओ ऐसा महबूब भी कोई कि जिसे रब ने यूँ फरमाया हो हम नमाज में मुंह ऊपर करें तो हमें गुनाह हो, इजाज़त ना हो, और रसूलुल्लाह बार बार आसमानों की तरफ देखें। और आप क्या फरमाए महबूब, तुम अपना चेहरा जब आसमान की तरफ करते हो हम तुम्हें देखते हैं, फिर करते हो हम तुम्हें देखते हैं। बस तू आसमान की तरफ करता है, हम तेरे चेहरे को देखते हैं। क्या चेहरा मुस्तफ़ा है जिसे बार बार रब खुदा देख रहा है, रब देख रहा है, खुदा देख रहा है। और फरमाता महबूब मुझे पता है कि तू क्या चाहता है, लेकिन ज़माने वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं वो भी कर देता, फिर भी तेरी शान है, लेकिन तुझी पे छोड़ता हूँ। क्या छोड़ता हूँ महबूब? जिस किबले पे तू राजी है, किबलतन तरदाहा, जिस किबले पे तू राजी है, जिधर चेहरा तू कर लेगा। चेहरा करना तेरा काम है, किबला बनाना हमारा काम है। तुम किबले की तरफ मुंह करके क्या कर रहे हो? ये किबला तुम किबले पे एहसान है आमिना के लाल का। अगर हुजूर बैतुल्लाह की तरफ चेहरा ना करते तो कोई भी ना करता, क्योंकि रब ने मुतलक रखा था, आम रखा था। किबला अल किबला ने फरमाया कि महबूब जो आपके दिल में है वो है, नहीं कहा किबला। महबूब हम बताना चाहते हैं कि हमने किबले को बदला है तो आपकी वजह से बदला है। कहा तरदा, जिधर आपका चेहरा होगा, जिधर आपकी रजा होगी, मशरिक को कर ले, मगरिब को कर ले, जुनूब को कर ले, शिमाल, इख्तियार आपको दिया है। बस आप चेहरा कर दें, आपकी रजा के किबला बदल देंगे। अब कुरान है ना, ये सारी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दाते मोहतरम, कुरान भी पढ़ो। क्या करो? अब कुरान के मफहूम को पढ़ो, लेकिन पढ़ो सुन्नी से, सुन्नी बरेलवी से, हुजूर के आशिक से। अब मैं आपसे कुरान की बात करके बात को ख़त्म करने लगा हूँ। आपसे कुरान की शान कितनी है अभी तो बताया था, इस साहिब कुरान की शान किसकी, फिर बताया था कुरान की शान किसकी, कुरान की शान कितनी है। कि साहिब कुरान की इतनी है तो कुरान की कौन अंदाज़ा लगा सकता? कुरान है ये अल्लाह का कलाम। कलाम किसका है? अल्लाह का कलाम। अब सुनो, हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजह करीम इसके राज़ी हैं, क्या फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते या अली कुरान सीखो। क्या फरमाया? अब हज़रत अली के मानने वाले हो ना सारे, तवज्जो से सुनो। हज़रत अली शेर खुदा को हुज़ूर फरमाते या अली, ए अली तुअल्लिमुल कुरान, कुरान सीखो, कुरान सीखो और क्या करो? वअल्लिमुहुन नास, सीखो और लोगों को सिखाओ, सीखो और लोगों को सिखाओ। हर हरफ के बदले 10 नेकी, हर हरफ के बदले। फिर क्या फरमाया? मैं अली सिखाते सिखाते अगर आप फोत होगे तो शहीद होंगे। सुभान अल्लाह, थोड़ी नेकी नहीं। अभी शायद पता नहीं चला कि आपको क़ारी कुरान का मकाम क्या है, आपसे कुरान का मकाम क्या है। और आलिम दीन तो बिरुद से ऊपर है ना। काली सीखो सिखाओ, सिखाते सिखाते फोत होगे तो शहीद होगे। क्या होगे? और फिर होगा क्या? हुज़ूर फरमाते हैं फरिश्ते तेरी कब्र पे इस तरह हाजिर होंगे जिस तरह लोग बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हाजिर होते हैं, बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर होते हैं। आप कुरान पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। अली अगर फोत होगे शहीद हो जाओगे, और जब शहीद हो जाओगे तो जैसे बैतुल्लाह की तरफ लोग ज़ोक शौक के साथ जाते हैं ना, और देखो कैसा जम्मे गफ़ीर होता है काबतुल्लाह पे। कौन मुहिब है जो कहे मुझे काबा का दीदार ना हो, मुझे मदीना का दीदार ना हो, तो कैसे ठट मारता समंदर होता है। फरमाया अली कुरान सीखते सिखाते रहो। अगर दुनिया से चले गए ना तो जो बैतों की तरह कसरत से लोग जाते हैं ना, वहाँ तो लोग जाते हैं ना, आपकी कब्र में इस तरह फरिश्ते आएंगे। इस तरह कौन आएंगे? फरिश्ते आएंगे। ये किसकी शान है? हाफ़िज़ कुरान की। आप मज़ीद सुने और इसलिए सुने कि तो आपको वजद आ जाएगा कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह शान बयान फरमाई हाफ़िज़ कुरान की। आपने फरमाया अल कुरान गनीजुन, अल कुरान, कुरान अमीर है। कुरान बोलो ना सारे ज़रा, कुरान गनी है। कुरान क्या है? हमने किसको गनी समझा है? हमारे यहाँ गनी कौन है? तो जिसे रसूलुल्लाह ने गनी फरमाया।
हुजूर फरमाते कुरान गनीयुन, कुरान क्या है? गनी है। और कुरान गनी है, ऐसा गनी है ला फख्र बादहू, वह कुरान ऐसा गनी है कि उसके बाद कोई तंगदस्ती नहीं है, उसके बाद कोई मोहताजी नहीं है। कुरान गनी है, वाला गनी यादूना, और जो कुछ भी कुरान के अलावा है वो गनी नहीं है। कुरान गनी है, ऐसा गनी कि उसके बाद मोहताजी नहीं, और जिसके पास कुरान नहीं, जो कुरान के अलावा है, फरमाया वो गनी नहीं। अब वो हाफ़िज़ कुरान कितना बदकिस्मत है कि जिसके सीने में कुरान हो कहे मैं गनी नहीं हूँ, और लोगों के आगे ऐसे ऐसे हाथ करे मांगता बने और कहे मेरी इज्जत नहीं है, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मुझे प्रोटोकॉल नहीं देते। हमें कहा शर्म कर, हया कर, तुझे कुरान का नहीं पता? तेरे सीने में रहमान ने अपनी तजल्ली नाज़िल फरमाई, कुरान का नुज़ूल हुआ, अल्लाह के जलवे आए, और अल्लाह के महबूब फरमाए कुरान गनी, तो जिसके सीने में कुरान आ गए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतर तो वो है जिसके सीने में कुरान आया, और उससे भी बेहतर हुआ जिसने कुरान को समझा, और उससे बेहतर वो है जिसमें कुरान ने अपने राज दिखाए, राज नाज़िल फरमाए, नूर नाज़िल फरमाए। तुम्हारा कुरान गनी है, इसके पास फ़ख्र नहीं है, और जिसके पास कुरान नहीं है वो मोहताज है, वो गनी नहीं है। अब हम कुरान पाक की तरफ तवज्जो करें तो कितनी हदीस बात, आखिरी हदीस बात कुरान पाक के हवाले से, वरना ये तो बड़ी हदीस बात हैं, अब इतना वक्त नहीं कि इसको बयान किया जाए, लेकिन ये जो हदीस बात हैं और ये ज़रूरी हैं कि इनको हाईलाइट किया जाए। बल्कि यहाँ तक हदीस बात में आता है, जिसने आपसे कुरान से दुश्मनी की, अल्लाह ने उससे दुश्मनी की। जिसने आलिम तो आलिम है, वो तो सर के ताज है। आपसे कुरान से मेरे आका फरमाते हैं, जिसने आपसे कुरान से दुश्मनी की फिर अपनी बातें वजू करते, और उसमें फ़क़द आदल्लाह, उसने अल्लाह से दुश्मनी की। आलिम से करेगा तो वो तो ऊपर है, सिर्फ हाफ़िज़ कुरान से जिसने दुश्मनी की, हुज़ूर फरमाते हैं फ़क़द आदल्लाह, कंज़ुल ईमान में ये हदीस मौजूद है, उसने अल्लाह से दुश्मनी की। और जिसने हाफ़िज़ कुरान से दोस्ती की, उसने अल्लाह से दोस्ती की। उसने किससे दोस्ती की? अल्लाह से दोस्ती की। अब इतना टाइम नहीं, लेकिन ये रवायत सुनेंगे ना, आपके सीने में ठंडक बढ़ जाएगी। और मैं सलामी पेश करता हूँ इस महल्ले को, और आज का नहीं है, अल्लाह का करम है इस महल्ले को कि बच्चों का लंगर इधर से चलता है। तो ये पुराने दौर से चला आ रहा है ये लंगर। कौन है जो दो इफ्तारी टाइम और सारी टाइम खाना देता है? आज वो अपने लिए मसला बना हुआ है। ऐसे सब हालात में भी सिर्फ रोटी नहीं, कितना कुछ है कि ये महल्ले वाले इन तलबा को देते हैं। मैं हम घर में भी हो सकता वो चीज़ें ना खाती हूँ, और शायद आप भी वो चीज़ें घर में ना खाते हो जो महल्ले वाले तलबा को देते हैं। इफ्तारी टाइम इतनी इफ्तारी होती है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाया होता है। मैं समझता हूँ कि इन पे रब का फजल है, इन पे रब राजी है, क्योंकि इन्होंने अपने कुरान से दोस्ती की है। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जिसने आपसे जो खिदमत कर रहा है वो दोस्ती तो है ना, जो आपसे कुरान की खिदमत कर रहा है, जो उलमा की खिदमत कर रहा है, तो ये माना इसलिए से मतलब करम है, इस पे फजल है कि ये हुफ़ाज़ से मोहब्बत करती हैं, ये उलमा से मोहब्बत करती हैं। और इसमें ख़ास करके इंतज़ामिया का बड़ा हाथ है। और इसमें भी अब मैं ना नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है बात का नाम ना लिया जाए तो नफ्स जो हमला कर देता है कि मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन बड़ा ही तावन है, बहुत तावन है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। दुआ करो ये करम रहे। देखा ना आपने अल्लाह का कितना फजल हुआ कि अब हमारे उलमा तैयार हो रही हैं, फिर ऊपर से बच्चियों का भी सिलसिला शुरू है। नाज़रे वाली कितनी बच्चियां हैं, अब अगली रात को उनको इनाम भी देने हैं, बच्चों को भी इनाम देने हैं। और फिर इसके साथ साथ दरस निज़ामी का भी सिलसिला शुरू कर दिया रमज़ान के बाद बच्चियों का। फिर 60 कोर्स रख दिए, हुकूक़ुल इबाद के रखे, हुकूक़ ज़ौजैन के रखे, वालिदैन के हुकूक़ पे रखे, बच्चों के हुकूक़ पे रखे, इत्तिक़ाद पे रखे, इनके तहारत के मसाइल, बुनियादी मसाइल कि छोटे छोटे कोर्स भी करने वाली माएँ बहनें 2-3 महीने का कर लें, 6 महीने का कर लें, ताकि ये जो घरों में आग लगी है, जब कुरान का नूर आएगा और मोहब्बत मुस्तफ़ा का नूर आएगा, वो ठंडक में बदल जाएंगी। तो अब देखो ये हदीस बात आप सुनो, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। वैसे तो हर हदीस से ठंडा होता है, हुज़ूर क्या फरमाते हैं, और इसे उन्होंने नकल किया है अल-अमन वल उला, उसमें ये हदीस मौजूद है। क्या रवायत है? अल्लाह ताला किसी बस्ती को अजाब देना चाहता है, किसी बस्ती को क्या चाहता है? कैसे बर्बाद कर दे। अब बर्बाद करना चाहता है तो फरिश्ते को हुक्म देता है, तो फरिश्ता अजाब लेकर आता है।
فرشتہ عذاب لے کر آتا ہے کہ اس بستی کو برباد کر دیا جائے، اور نیچے اور ہی منظر ہوتا ہے، فرشتے کو پتہ نہیں نیچے منظر کون سا ہے، وہ عذاب لے کر جب آتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں نیچے منظر اور ہی ہوتا ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ سنو منظر کیا ہے، کہ بڑے بڑے سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سوئے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فجر سے پہلے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عذاب دینے کے لیے فرشتہ آیا اور نیچے آگے دیکھا کہ بڑے بڑے سوئے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ننے 10 سال کے 11 سال کے بچے ساری ٹائم اٹھے ہوئے ہیں، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، اور وضو کر کے الف لام میم ذالک الکتاب یہ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ وہ جب فرشتہ دیکھتا ہے کہ وہ وضو کر رہی ہیں، قرآن کی یاد میں مصروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا فرشتوں واپس آ جاؤ، فرشتوں واپس آ جاؤ۔ واپس کیوں آ جائیں؟ میں نے ان چھوٹے چھوٹوں کی وجہ سے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان چھوٹے چھوٹوں کی وجہ سے بڑے بڑوں کو معاف کر دیا ہے۔ آج وجہ یہ بنی ہم یہ سنتے نہیں کہ حافظ قرآن کی غفلت کی وجہ سے مسٹیک ہو جاتی ہے جس سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم دین حاصل کرو، یہ ایسا چراغ ہے نقصان نہیں ہوگا بلکہ چراغ پہ چراغ نصیب ہوگا۔ اور یہ آخری حدیث تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اور متعلم، جاننے والا اور سیکھنے والا، جاننے والا اور سیکھنے والا، فَإِذَا مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ جب وہ کسی بستی کے پاس سے گزرتی ہیں، کس کے پاس سے؟ عالم اور متعلم، سیکھنے والا سکھانے والا صرف گزرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو یہ عالم بھی سنی اور یہ متعلم بھی محب مصطفیٰ، دوسروں کی کوئی بات نہیں۔ عالم متعلم جب دونوں گزرتے ہیں بستی کے پاس سے فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ 40 يَوْمًا، اللہ پاک اس بستی میں جو قبرستان ہے اللہ پاک 40 دن تک اس کا عذاب بھی اٹھا دیتا ہے۔ 40 دن تک آپ سے قرآن گزر جائے کہ 40 دن تک عذاب اٹھ جائے، تو جس قبر پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھے آپ سے قرآن، اس قبر والے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا جنرل کھلونے جنرل 1 لاکھ سال بھی کھڑا ہو اور جنرل کرنل بھی ہو، ڈی ایس پی ایس ایچ او بھی ہو، وقت کا حاکم بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، 1000 برس گزرے، کیا ایک مرتبہ بھی نور آئے گا؟ ایک مرتبہ بھی عذاب اترے گا؟ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، یہ جنت کرنل نہیں ہے، لیکن جنت کرنل بھی اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی خاک کے برابر نہیں، کیونکہ جس راہ سے گزر جاتے ہیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بستی والے کے قبرستان میں جو عذاب ہو رہا تھا اللہ 40 دن تک اس سے عذاب بھی اٹھا دیتا ہے۔ اب حافظ قرآن کی کیا شان بیان کریں اور کتنی بیان کریں؟ اس میں عالم دین بھی ہے، اس میں وہ حافظ قرآن جو باعمل ہے، کون ہے؟ یہ نہیں کہ جھوٹ بھی بولے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں رب قاری یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ یا تو غلط قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھ کے قرآن کے خلاف چلتے ہیں، تو ان پہ تو قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے سینے میں قرآن ہے اور سارے بدن پہ رنگ مصطفیٰ ہے، وہ اس حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس عالم دین کی بات ہو رہی ہے کہ جب حافظ قرآن کی یہ شان ہے جو قرآن کو حفظ کرنے والا ہے اور حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور 10 جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ ان 10 جہنمیوں کو خاندان والوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اور شہید کے لیے 70 کا عدد رکھا کہ شہید 70 کی سفارش کرے گا تو اللہ اسے جنت میں، اور حاجی کے لیے اس سے بھی زیادہ، حاجی کے لیے شہید سے بھی زیادہ، پتہ نہیں کتنے 100 ہیں کہ حاجی جو صحیح حاجی کرے اس کی سفارش سے اللہ کتنوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن حدیث بعد میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم دین کو اللہ پاک فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ کہ تیرے جتنے بھی طالب علم ہیں، تمہارے جتنے بھی طالب علم ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ستاروں کی تعداد کے برابر بھی ہوں۔ کتنے؟ ستاروں کی تعداد کے برابر بھی ہوں۔ مالک فرمائے گا سفارش کر اور ہر طالب علم کو جنت دیں گے ہم، ہر طالب علم کو ہم، صرف یہ نہیں عابد آئے گا، اللہ پائے گا ادخل العابد ادخل الجنہ، عابد کو کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ عالم دین داخل ہونے لگا قف ٹھہر جا، عالم دین کو روک دیا جائے گا
और आप आबिद इबादत करने वाला, आलिम नहीं था, इबादत करने वाला था, हाफिज नहीं, आबिद। कहा चले जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब आलिम दीन जाने लगेगा, हुजूर का गुलाम जाने लगेगा, तो फरमाया जाएगा किफ, ठहर जाओ। ऐसे नहीं, सारी जिंदगी मेरे लिए सहते रहे, खत्म नबूवत तू बात करता, तीर तुम पे चलते, तेरे अपने भी तेरे खिलाफ होते, हक बात तू करता, तेरे खिलाफ बोलते, तू खरी बात करता, तेरे खिलाफ हमले करते, तू बर्दाश्त करता और तू पीछे ना हटा। तूने अल्लामा इकबाल के उस शेर की भी, उस शेर पे भी अमल करके दिखाया, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना वाजिब है। तूने यजीद के सामने खड़े होकर मुकाबला किया है, हुसैनी किरदार अदा किया है, तूने कहीं भी दीन के हवाले से गर्दन नहीं अपनी झुकाई, कोई ऐसा मसला नहीं बनाया, हर तकलीफ बर्दाश्त किया तूने। आज ऐसे ही जाने दे, हमारे लिए किया है तो ऐसे ही जाने दे ना। आज अशर वालों को बताएंगे कि जिन्होंने हमारे लिए सही है, हम उसे देते क्या है, नवाजते क्या है। कहा रुक जाओ आलिम दीन इधर, लिन्नास, लिन्नास का लफ्ज़ बोला। शहीद के लिए 70 का आदत, हाफिज के लिए 10 का आदत, हाजी के लिए भी आदत, लेकिन आलिम के लिए आदत खत्म कर दिया। आलिम के लिए आदत खत्म कर दिया। कहा कोई आदत नहीं, बस जिस चीज की तू सिफारिश करता जाएगा, जिस चीज की तू सिफारिश करता जाएगा उसको हम जन्नत दाखिल फरमाते जाएंगे। जिंदाबाद। अब आपने देखा, ये तो मैंने बड़े इख्तिसार के साथ कुरान और साहबे कुरान, जश्न नज़ूल कुरान और जश्न साहबे नज़ूल कुरान, इसके तरफ थोड़ी सी गुफ्तगू की है, वरना रात तो ख़त्म हो सकती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात ख़त्म नहीं हो सकती। और ये तो एक ऐसा दरिया है, एक समंदर है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे पीछे मुर्शिद करीम है। और हमें अपने ऊपर कोई, हम गुनाहगार हैं, हमें पता हम सियाकार हैं। हसस न कदर मेरी, मेरे सैया नु वढ़ियाइयाँ, हम क्या हैं, कुछ भी नहीं, नकम में आप हमसे आला हैं। लेकिन एक बात है हमारी, एक बात है, वो क्या है पता है? सहाबी ने क्या कहा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ना, उन्होंने कहा क़यामत कब आएगी? पढ़ो बुखारी मुस्लिम, क़यामत कब आएगी पूछा, आपने कहा तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? सहाबी क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? वो सब आगे आ जाए, अब बस खत्म होने की है। क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया बताओ अत्तलहा, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? उन्होंने कहा नमाजें तो पढ़ी हैं। सहाबी हो तो नमाजें ना पढ़े, नमाजें भी पढ़ी, फ़र्ज भी अदा किए, लेकिन जायद काम नहीं किए। क्या नहीं किए? नफली काम, ये ज़्यादा नहीं किए, लेकिन एक काम मैंने किया है, एक काम मैंने किया है। वो काम क्या किया है? कहा एक काम तो है, वो क्या? कहा नमाजें फ़र्ज तो पढ़ी, बाकी फ़र्ज चीज़ें भी अदा की, जायद नहीं की, लेकिन मेरे आका आपसे मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत है। नमाजों में नाज नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन नफली नहीं पढ़ी, नफली काम नहीं किए, लेकिन एक बात मेरे दिल में है, वो क्या? आपसे मोहब्बत है। तो आपने पता क्या फरमाया? आप फिर मुझसे मोहब्बत है तो जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो उसी के साथ होगा, जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो उसी के साथ होगा। इसलिए हम नकम्मे हैं, हम कमीने हैं, हम मानते हम गुनाहगार हैं। आप आना है लेकिन निस्बत आला से, निस्बत। इसलिए मियाँ साहब ने कहा खास सच न कदर साडी जिन्ना साढ़े साइयां नू वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैं हल चढ़ाया साइयां। असल बात उन्हीं की है, असल बात हुजूर की है, असल बात हुजूर की है। ये हुजूर के गुलदस्ते के फूल हैं और हर फूल की अपनी चमक है, हर फूल की अपनी रोशनी है। दुआ करो अल्लाह पाक इन फूलों को सलामत रखे और इन फूलों से हमें खुशबू लेते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस बाग को सदा बहार अता फरमाए और मुआविनीन को, मुंतज़िमीन को, जितने भी सारे आए अपनी पाक बारगाह से अपनी शान के लायक अजर अता फरमाए। हमें जो सिलसिला आगे चलाना